Welcome students. Welcome to the lecture number 12 of chapter Computer Networks. In the previous lecture we have learned about the protocols and what are the various types of protocols available with us. Okay. Now today we are going to start with the World Wide Web, and in short we called it as WWW, right? So what is this World Wide Web? It's basically defined as a hypertext information retrieval system on the internet. Okay, so whenever you want to open a particular website, so first you will write www dot, then the name of the website, suppose it's yahoo.com, so first you will write the www.yahoo.com. okay, so www is basically an hypertext information retrieval system. Hypertext means websites or web pages retrieval system. Okay, so this is basically a system for accessing the websites on the internet. Tim Berners-Lee is basically the inventor of this WWW. WWW is basically the universe of information available on the internet. Okay, so World Wide Web, it basically contains information about all the websites, and with the help of this, suppose you can take it as a pool of websites. Okay, so all websites are present in this World Wide Web, and with this mechanism and the World Wide Web provide facility for you so that you can access the websites in your systems. So WWW consists of web pages which uses HTML to interchange information on the internet. All the web pages on the WWW use HTTP transfer protocol for any information with the capability of making hypertext jumps. So just consider this thing that suppose WWW is like a pool, okay, in which all the websites are present, right? WWW is just like a pool in which all the websites are present, and whenever you want to access any website, then the HTTP protocol is basically used for providing you the website at your system. ठीक है, तो जो WWW है वो क्या हो गया, एक पूल हो गया जिसके अंदर सारी वेबसाइट रजिस्टर्ड है. ठीक है, और जब आप अपने कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो उसको उस पूल से आपको एक्सेस करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है जी. सो नेक्स्ट थिंग इज वेब पेज. ओके, सो वेब पेज होता क्या है, व्हाट इज बेसिकली अ वेब पेज. ठीक है, यू नो व्हेन वी डेवलप अ वेबसाइट, ओके, as you already know about the HTML, okay, in your 9th class or 10th class आप लोगों ने using the HTML आप लोगों ने एक वेब पेज डिजाइन किया होगा. ठीक है, तो वो पेज जो आपने डिजाइन किया, जो आपके वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले हो रहा है, दैट पेज इज कॉल्ड एज द वेब पेज. ठीक है जी. तो a web page is an electronic design document designed using HTML. so obviously जो वेब पेज आप लोगों ने बनाया है वो आपने HTML के द्वारा बनाया होता है. अच्छा, नाउ अब जो वेब पेज आप बना रहे हो उसके अंदर होता क्या है, वो वेब पेज क्या करता है, इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन टेक्सचुअल और ग्राफिक फॉर्म. ठीक है, सो आपने देखा होगा जब जब एक वेब पेज डिजाइन करते हो यूजिंग द HTML, इन दैट केस आप उस पेज में क्या क्या डालते हो, आप उसमें टेक्सचुअल डेटा डालते हो, आप उसमें इमेजेस डालते हो. ठीक है, अच्छा, कई बार आप उसमें ऑडियो, वीडियो और भी बड़ी सारी चीजें हम उसके अंदर डाल सकते हैं. सो वेब पेज क्या करता है, इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन टेक्सचुअल और ग्राफिकल फॉर्म, और वेब पेज में ही इट मे ऑल्सो कंटेन डाउनलोडेबल डेटा फाइल्स, ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स. ठीक है जी. सो ट्रेवर्सल फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज इज पॉसिबल थ्रू हाइपरलिंक्स. अब ये हाइपरलिंक्स का मतलब क्या है, सपोज आपने एक वेबसाइट खोली, जैसे मान लो आपने लिखा www.yahoo.com. सो आपके सामने याहू का होम वाला वेब पेज खुल गया. अब आपने उस वेब पेज पे एक जगह पे लिखा हुआ था स्पोर्ट्स, आपने स्पोर्ट्स पे जाके क्लिक किया, सो आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो गया.
तो असल में क्या होता है कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर क्या होता है, बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं, बट हमने क्या कर रखा होता है, उन वेब पेजेस को आपस में लिंक कर रखा होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, जैसे सपोज मैंने ये गूगल क्रोम ओपन करता हूं, गूगल क्रोम मेरे सामने खुल गया। अब मैं इस पे लिख देता हूं जी www.yahoo.com लिख के मैंने एंटर मारा। ठीक है, तो जैसे मैंने एंटर मारा, अब ये मेरे सामने याहू का होम का वेब पेज खुला हुआ है। ये क्या खुला हुआ है, याहू नाम की जो वेबसाइट है उसके अंदर बड़े सारे वेब पेजेस होंगे। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास कौन सा पेज खुला है, उसका होम नाम का जो पेज है वो मेरे सामने खुला हुआ है। ठीक है, अब सपोज इसमें मैं यहां पे जाता हूं, बड़े सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, अब सपोज मान लो मैं यहां पे न्यूज पे चला गया, तो जैसे मैंने यहां पे न्यूज पे क्लिक करा तो मेरे सामने एक और पेज आ गया। अब ये वाला पेज किससे लिंक था, उस न्यूज वाले से लिंक था। यानी कि अभी मेरे पास एक फर्स्ट तो पहले एक होम पेज आया था, अब एक ये न्यूज वाला पेज है, लेकिन न्यूज वाला पेज मेरे सामने कब खुला, जब मैंने न्यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करा। अब सपोज जैसे यहां पे आ गए, यहां पे फेक न्यूज लिखा हो, मैंने चलो फेक न्यूज पे क्लिक करता हूं, तो जब मैंने फेक न्यूज पे क्लिक करूंगा तो एक और पेज मेरे सामने खुल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब अब याहू वाली वेबसाइट के अंदर क्या है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस एंड ऑल दीज पेजेस आर लिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली अ वेबसाइट। ठीक है, तो जैसा हमने बोला कि ट्रैवर्सल फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज इज पॉसिबल थ्रू हाइपरलिंक। जैसे आपने देखा मैंने न्यूज पे क्लिक करा, सो एक नेक्स्ट पेज खुल गया ना, सो बेसिकली वो क्या हुआ है, वो हाइपरलिंक्स बने हुए। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों ने HTML करा ही होगा, सो यू नो दैट देयर इज अ एंकर टैग, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे लिंक, एक पेज का दूसरे पेज से लिंक स्टैब्लिश करने के लिए वी बेसिकली यूज्ड। ओके, अच्छा, अब वेब पेज को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज अ स्टैटिक वेब पेज एंड अदर वन इज अ डायनेमिक वेब पेज। तो पहले जरा जान लेते हैं स्टैटिक वेब पेज के बारे में। क्या देखो, स्टैटिक और डायनेमिक, ये जो दो वर्ड्स हैं, स्टैटिक मतलब होता है फिक्स्ड और डायनेमिक मतलब होता है जो चेंज होता रहता है। सो जब हम बात करते हैं स्टैटिक वेब पेज, तो स्टैटिक वेब पेज क्या है, अ वेब पेज विच डिस्प्ले सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्टैटिक वेब पेज का मतलब एक ऐसा वेब पेज दैट डिस्प्लेज द सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन whenever a user visited, it is known as a static web page। ठीक है जी, तो स्टैटिक वेब पेज बेसिकली क्या होता है, जब हम सपोज मान लीजिए कोई भी वेबसाइट को, जिस वेबसाइट को ओपन करें, ठीक है, और सपोज मान लो कोई पेज है, मैं इसको मतलब जो भी सपोज एक फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं, जैसे सपोज फेसबुक है, जब हम फेसबुक को ओपन करते हैं तो फेसबुक का फर्स्ट पेज हमारे सामने आता है। अच्छा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जितनी बार भी आप फेसबुक खोलोगे उसका फर्स्ट पेज जो है वो बिल्कुल एज इट इज वही आएगा कि भाई ऊपर लॉगिन करने का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, नीचे अगर आप कोई नया बंदा रजिस्टर करना चाहता हो तो उसके लिए फॉर्म दे रखा है, साइड में कुछ इमेज बनी हुई है बस। सो एक तरह से चाहे उस फेसबुक के होम पेज को मैं अपने सिस्टम में ओपन करूं और इन योर सिस्टम वी विल गेट द सेम पेज ऑल टाइम। सो दैट इज अ स्टैटिक पेज। ठीक है भाई, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, आप जब कभी भी उसको ओपन करोगे यू विल ऑलवेज गेट अ पेज एट दैट टाइम। जैसे आप लोगों ने 9th-10th में जो भी आप लोगों ने वेब पेजेस डिजाइन किए विद द हेल्प ऑफ द HTML लैंग्वेज, तो आप लोगों ने क्या डिजाइन किया, यू हैव डिजाइन द स्टैटिक वेब पेज। ओके, कि भाई आपने कोडिंग लिख दी, अब जितनी बार भी मैं उस फाइल को ओपन करूंगा, जितनी बार भी मैं उस HTML फाइल को वेब ब्राउजर में ओपन करूंगा, आई विल सी द सेम कंटेंट ऑल द टाइम। ठीक है, कंटेंट में कोई चेंज नहीं है भाई, आपने जैसा कोड लिखा हुआ है एज इट इज उसी के अकॉर्डिंगली कंटेंट जो स्क्रीन पर आ रहा है, चाहे मैं उस वेब पेज को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 100 टाइम रन करूं, I will get the same information. Okay, so there is no change at all. So that is called as basically the static web page, right? So static web page एक ऐसा web page है जिसके अंदर information will remain the same. Now let's move to the next thing, that is a dynamic web page. What is basically the dynamic web page? Now it is an interactive web page, is a dynamic web page. Okay, a dynamic web page uses scripting languages
टू डिस्प्ले चेंजिंग कंटेंट ऑन द वेब पेज। सो अब स्टैटिक वेब पेज तो हमने पढ़ लिया कि भाई जो मैं स्टैटिक वेब पेज बनाऊंगा तो उसको क्या होगा कि मैंने कोड में HTML को यूज करके आई हैव रिटन अ कोड, तो उस कोड के अकॉर्डिंगली जो वेब पेज मेरे सामने आया, जब जब मैं अपनी वेबसाइट को रन करूंगा, मैं उस वेब पेज को रन करूंगा, आई विल गेट द सेम कंटेंट, यानी कि उसका कंटेंट अपने आप चेंज नहीं होगा, दैट कंटेंट विल रिमेन द सेम, राइट। नाउ अब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायनेमिक वेब पेज। अब ये डायनेमिक वेब पेज का मतलब क्या होता है? डायनेमिक वेब पेज का मतलब है कि हम ऐसा वेब पेज बनाने की बात कर रहे हैं जिसका कंटेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है, या जिसके कंटेंट को हम टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहेंगे या चेंज होता रहेगा, जो भी है। सो अ डायनेमिक वेब पेज यूजेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू डिस्प्ले चेंजिंग कंटेंट ऑन द वेब पेज। तो अभी तक आप लोगों ने HTML पढ़ा, आपको पता है कि अगर HTML का कोड बना के, HTML का कोड को यूज करके जो आप फाइल डिजाइन करोगे, जो वेब पेज डिजाइन करोगे, वो कहलाएगा स्टैटिक वेब पेज। पर मैंने कहा कि यार मैं चाहता हूं अपने इस वेब पेज पे कुछ चेंजिंग कंटेंट लाना, तो अगर मैं अपने इस HTML वाले वेब पेज पे कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी यूज करूंगा, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के द्वारा मैं अपने वेब पेज पे चेंजिंग कंटेंट भी दिखा सकता हूं, ठीक है। मैं अपने वेब पेज पे क्या दिखा सकता हूं? चेंजिंग कंटेंट दिखा सकता हूं। क्लियर थी बात? अब जैसे आप कभी वो ओपन करते हैं, गूगल का होम पेज ओपन करते हैं, आप देखते हैं ना www.google.com, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, ऊपर गूगल जो है अलग अलग डिजाइन में लिखा हुआ आता है, कभी कुछ कोई अलग डिजाइन होगा, कभी कुछ अलग डिजाइन होगा। तो ऑब्वियस बात है कि गूगल वालों ने अपने उस होम पेज के अंदर, जब भी आप google.com लिखते हो तो जो होम पेज आपके सामने आता है, उस होम पेज में कोई ना कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करके वो ऊपर का डिजाइन बार बार अलग अलग चेंज करने का कोड उन्होंने डाला होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं अपने HTML पेज के अंदर अगर सपोज मान लो कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करता हूं, तो मैं अपने वेब पेज के अंदर कोई ऐसा कंटेंट भी फिट करवा सकता हूं उस लैंग्वेज की कोड के द्वारा जो चेंज होता रहे। सो सच अ पेज हैज जनरली PHP, ASP और JSP एक्सटेंशन, ठीक है जी। तो अगर मैं स्टैटिक वेब पेज बनाऊंगा तो उसकी एक्सटेंशन होगी .html, लेकिन अगर मैं कोई डायनेमिक वेब पेज बनाऊंगा तो उस वेब पेज की एक्सटेंशन होगी .ASP या .JSP, ठीक है जी। नाउ आफ्टर दैट, अब हमने यहां पे एक बात करी यहां पे, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो अब जरा इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक पर्पज ऑफ दिस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसका यूज क्या है हमारे पास। अच्छा, अब सपोज मान लो, आई विल टेक एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। चलिए, सपोज मान लो क्या होता है कि आपके किसी पर्टिकुलर फ्रेंड का आज बर्थडे है, ठीक है, उसका बर्थ डे है आज। अच्छा, अब आपका वो फ्रेंड, बेसिकली आप तो अपना दिल्ली में रह रहे हैं, बट सपोज आपका वो फ्रेंड दिल्ली में नहीं रह रहा, बल्कि वो फ्रेंड सपोज बैंगलोर में है, ठीक है। नाउ आपने सोचा कि यार अब मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, कल परसों जो भी बर्थडे है उसका, सो मैंने सोचा कि चलो मैं उसके लिए कोई ऑनलाइन गिफ्ट बुक करके उसको भेज देता हूं मैं वहां पे, ठीक है। और भाई मैं गिफ्ट बुक करूंगा और वहां से उसके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा, बात खत्म। अच्छा, अब सपोज आपने एक शॉपिंग की वेबसाइट को एक्सेस किया, ठीक है, तो सपोज ये उस जो शॉपिंग वाली वेबसाइट है जिसको आपने एक्सेस किया, सपोज ये उस कंपनी का सर्वर है, ठीक है, दिस इज द सर्वर कंप्यूटर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा चलो ठीक है, ये सर्वर कंप्यूटर हो गया उस कंपनी का, अब क्या है, अब सपोज आपने उस कंपनी की वेबसाइट अपने कंप्यूटर में ओपन करी, ओके, तो उसके बाद आप जो है वहां से अलग अलग आइटम्स को देखने लगे, और आपको जो आइटम समझ में आ रहा था आपने उसको क्या करा, अपने कार्ट में ऐड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए आपने देखा आपको सपोज मान लो वहां पे जीन्स बहुत अच्छी लगी, तो आपने सपोज एक जीन्स वहां पे ओके कर दी, यानी जीन्स को अपने जो है शॉपिंग कार्ट में आपने ऐड करवा दिया। तो जैसे आपने इस जीन्स को ऐड करवाया तो आपकी रिक्वेस्ट कहां गई, यहां से सर्वर के पास गई। सर्वर ने उस जीन्स का प्राइस देखा, जो भी डिस्काउंट फंड तो सब बना के यहां पे उसने रिस्पांस दिया, और आपके सामने एक बिल जनरेट होता हुआ दिख रहा है आपको कि भैया अब आप लोगों ने जीन्स ओके कर दिया है, तो जीन्स का जो अमाउंट है हमारे पास वो यहां पे आ गया। सपोज अब
टोटल अमाउंट हमारा बन गया है 700 सपोज, ठीक है, या मान लो 1700 रुपए की जीन्स थी तो 1700 रुपया टोटल अमाउंट आ गया। फिर आपने कुछ और कंटेंट भी देखा इसमें, सपोज मान लो आपने उसके लिए आपको एक टी शर्ट समझ में आई, आपने कहा चलो जी एक टी शर्ट भी ले लेते हैं उसके लिए, ठीक है। अच्छा, तो जैसे आपने टी शर्ट सेलेक्ट करी, आपने क्लिक करा, सो अगेन योर रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू द सर्वर, और सर्वर ने मैनिपुलेट करके आपके टोटल अमाउंट में पैसा ऐड करके देन ही विल सेंड द टोटल अमाउंट टू यू। सपोज अब जो टी शर्ट आपने परचेज करी, लेट उसका सपोज अमाउंट विल बी राइट, सपोज मान लो उस टी शर्ट का अमाउंट 1000 रुपीज था, ओके। सो अब आपका जो टोटल बिल आपको यहां पे नजर आने लगा दैट इज अराउंड 2700, राइट। अच्छा, अब उसके बाद आपने कहा चल यार जीन्स हो गई, टी शर्ट हो गई, तो चलिए यार एक काम करता हूं, उसको मैं ना एक शूज भी गिफ्ट कर देता हूं। तो चलो जी, आपने यहाँ पे शूज भी देखे, डिफरेंट टाइप थे, और आपको एक शूज पसंद आया, आपने कहा चल भाई ये वाला शूज मैं उसको गिफ्ट कर दूंगा। तो आपने शूज भी सिलेक्ट करके ओके करा, तो अगेन योर रिक्वेस्ट विल सेंड टू द सर्वर, सर्वर फाइंड द प्राइस ऑफ द शूज, जो वट एवर द डिस्काउंट इज एप्लीकेबल, अप्लाइड द रोज डिस्काउंट्स एंड देन सेंड द रिजल्ट। And suppose the price of the shoes is around 1500, right? So the price of the shoes is around 1500. Okay. So now when the price of the shoes is added, so after that your total amount will become, it's 4200. Okay. So now your total price will become, total amount, total bill will become 4200, right? Now, अब जब इतना बिल आया तो आपने सोचा कि यार ये तो बहुत ज्यादा बिल हो गया यार, चलो एक काम करता हूं, मैं कुछ आइटम इसमें से ड्रॉप कर देता हूं। सो आपने क्या करा, जो भी आपके कार्ट में आइटम थे उनमें से आपने ये शूज हटा दिया, आपने कहा छोड़ यार शूज हटाओ, शूज क्यों फालतू में ऐड कर दिए मैंने। तो एज सुन एज जैसे आपने यहाँ पे शूज हटाया, आपका जो बिल था वो वापस 2700 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने सोचा कि यार एक काम करता हूं ना, ये जीन्स का बहुत महंगा प्राइस हो रखा है, क्यों ना इस जीन्स को भी हटा देता हूं, क्योंकि यार 2700 का प्राइस हो रखा है। तो आपने क्या करा, जीन्स को भी रिमूव कर दिया कार्ट में से। सो अगेन योर रिक्वेस्ट विल सेंड टू द सर्वर, सर्वर ने सारी मैनिपुलेशन करी एंड आफ्टर मैनिपुलेटिंग उसने आपको रिजल्ट दे दिया कि नाउ योर टोटल बिल इज ओनली 1000 रुपीज, ठीक है, यू हैव टू पे ओनली 1000 रुपीज, ओके। नाउ अब आपने कहा चलो भाई ठीक है, अब 1000 रुपए हो गया प्राइस, अब मैं पे कर देता हूं। तो फिर अचानक आपके पे करने जा रहे थे, अचानक आपके दिमाग में आया कि छोड़ना यार, अब तो वो फ्रेंड जो है बेंगलोर में रहता है, 1 साल हो गया उसको गए हुए, फालतू में क्यों 1000 रुपए भी मैं क्यों खर्च करूं। तो आपने क्या करा, आपने एक सिंपली इस वेबसाइट को क्लोज कर दिया। अब एक चीज देखो यहाँ पे, या आपने लिया दिया तो कुछ नहीं, इतनी देर आप यहाँ पे कभी कोई आइटम सेलेक्ट करते रहे, आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती रही, सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता रहा, वो प्राइस ऐड कर करके, डिस्काउंट एप्लीकेबल कर करके आपको यहाँ पे अमाउंट भेजता रहा, इतना सब कुछ काम करता रहा, लेकिन एंड में हुआ क्या, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे पहली चीज यहाँ पे कि ये जो ये आइटम खोज के ऐड कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली उसको प्लस कर रहे हैं, ये सारे क्या हो रहा है, ये ऑब्वियसली एक प्रोग्राम होगा इस काम के लिए, और वो प्रोग्राम जो ये बेसिकली सारा काम कर रहा होगा, ठीक है जी, जिससे बेसिकली आइटम का पहले प्राइस सिलेक्ट किया, फिर डिस्काउंट अप्लाई किए, फिर जो टोटल बिल में उसने ऐड करा, तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पे प्रोग्राम ही होगा जिसको यूज करा जा रहा होगा। अब ये प्रोग्राम किसी न किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बनता है, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है हम किस में बनाते हैं, किसी ना किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग ये प्रोग्राम बनाते हैं। मार्केट के अंदर बड़ी सारी डिफरेंट टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात आ गई। अब क्या होता है कि अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बड़ी डिफरेंट टाइप की है, ठीक है। अब इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या है कि अगर ये जो प्रोग्राम है जो मैंने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बनाया है, अब हमारे पास अलग अलग तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग कहते हैं ASP, ठीक है जी। एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग कहते हैं JSP, और एक और लैंग्वेज है जिसको हम लोग कहते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट होता है, इसको मैं भी JS लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, और एक होता है VB स्क्रिप्ट, इसको VS लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, ओके। सो ये हमारे पास कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है।
नाउ अब एक चीज देखो ध्यान से यहां पे, अब ये आपको समझ में आ गया कि ये जो भी प्लस माइनस जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है ऑब्वियसली इसके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम होगा जो ये और बेसिकली कहते हैं ना रन टाइम में सारे काम कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है और आपको नया नया रिजल्ट निकाल के दे रहा है। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है, जब भी आप क्लिक कर रहे हो तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है और आपको नया नया रिजल्ट निकाल के दे रहा है। सो इट मीन्स यहां पे अब ये किस चीज की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायनेमिक वेब पेज, क्योंकि आप जैसे जैसे आइटम सेलेक्ट करते जा रहे हो, नया आइटम ऐड हो, नया प्राइस ऐड होके माइनस होके जो भी है, आपको नया नया बिल आपके सामने अपीयर हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो अब क्या होता है कि अभी ये जो प्रोग्राम है ये कहां पे, अगर आपको सपोज चाहते हो कि ये जो प्रोग्राम आपका है, ये जो भी हमारा स्क्रिप्टिंग का प्रोग्राम डला होगा, ये प्रोग्राम अभी कहां पे है, सर्वर पे है। ठीक है, तो जब आप क्लिक कर रहे हो आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है, सारी प्रोसेसिंग सर्वर पे हो रही है और फिर वापस आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। अब एक चीज सोचो यार, आपने लिया दिया यहां पे कुछ भी नहीं, फालतू में सर्वर ने कितनी बार आपके लिए प्रोग्राम रन किया, कई बार रन किया। ठीक है, कई बार आपके लिए प्रोग्राम रन किया और अल्टीमेटली आपने जब कुछ लिया नहीं तो सर्वर का पूरा पूरा टाइम वेस्ट है यहां पे। अब मैंने कहा कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि यार ये जो प्रोग्राम यहां सर्वर के में रन हो रहा है, ये सर्वर में रन होने के बजाय क्लाइंट की मशीन में रन हो। ठीक है जी, ये प्रोग्राम जो है मेरा, ये सर्वर मशीन पे रन होने के बजाय अगर ये क्लाइंट की मशीन में रन हो तो ठीक है भाई, जो तुमने आइटम सेलेक्ट करना है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो सारी क्लाइंट की मशीन पे ही हो रही है। ठीक है, यानी कि सारा टाइम क्लाइंट की मशीन पे कंज्यूम हो रहा है। अब लास्ट में जब वो फाइनल करेगा कि हाँ मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, जो फाइनल पेमेंट पे आएगा तब रिक्वेस्ट सर्वर के पास भेजें। अदरवाइज वो जब तक आइटम सेलेक्ट कर रहा है, डी सेलेक्ट कर रहा है, तो सारी बिलिंग की प्रोसेसिंग सारी क्लाइंट मशीन पे ही हो। ठीक है, इससे क्या होगा, सर्वर का फालतू टाइम नहीं लगेगा। हाँ भाई, जो भैया बंदा बिल पे करना चाहता है, दोज हु वांट टू रियली परचेज समथिंग, जो फाइनल पेमेंट करना चाहते हैं, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द सर्वर। ओके, सो अब देखो यहां पे ध्यान से, अगर आपने अपनी जो HTML फाइल बनाई है, जो आपका वेब पेज बनाने के लिए हम HTML फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि इस HTML फाइल में मैं ऑब्वियसली कुछ डायनेमिक वेब पेज बनाना चाहता हूं, तो मैंने आपको बोला था इसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, डायनेमिक वेब पेज अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मैंने बोली ASP, JSP, JS और VS। तो अब सिंपल सी बात देखो ध्यान से, अब इसमें क्या है कि अगर सपोज मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम है सर्वर साइड रन हो, तो मैं ये प्रोग्राम बनाऊंगा, जो कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करूंगा, मैं करूंगा या तो ASP या मैं यूज करूंगा JSP। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम है, अगर वो आप चाहते हैं कि सर्वर साइड रन हो, तो आपको ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी यूज करनी पड़ेगी, या तो ASP यूज करोगे या JSP। ASP की फुल फॉर्म होती है एक्टिव सर्वर पेजेस और JSP की फुल फॉर्म है जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, तो अगर मैं इन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपने HTML वाली फाइल में कोडिंग डालूंगा तो ये कोड कहां पे रन होगा, ये प्रोग्राम कहां पे रन होगा, हमेशा सर्वर साइड रन होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं भाई सर्वर का टाइम खराब ना हो, मैं जो भी प्रोसेसिंग या जो भी प्रोग्राम बनाऊं वो सारा क्लाइंट की मशीन पे रन हो, तो मुझे फिर कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, या तो JS मतलब जावा स्क्रिप्ट या VS यानी कि VB स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये या अगर मैं इन दोनों लैंग्वेजेस के द्वारा अगर कोड बनाऊंगा तो वो कहां रन होगा, वो रन होगा हमेशा क्लाइंट की मशीन में। और अगर मैं ASP JSP के द्वारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड बनाऊंगा तो वो कहां रन होगा, हमेशा सर्वर साइड में रन होगा। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी थोड़ी बहुत जो मैंने बताया यहां पे। ठीक है, कि अगर हम अपनी वेबसाइट में वेब पेज जो हम बना रहे हैं, अगर सिंपल प्योरली HTML से बनाते हैं तो वो स्टैटिक वेब पेज बनेगा। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं भाई डायनेमिक वेब पेज बनाना है, तो उसके अंदर मुझे कोई ना कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली कोई प्रोग्रामिंग लगानी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं ASP JSP नाम की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करता हूं तो मेरा जो प्रोग्राम है, जो कोड मैंने इनके द्वारा बनाया है अपनी वेबसाइट के अंदर, वो कहां पे रन होगा, हमेशा सर्वर साइड पे रन होगा, सर्वर मशीन पे रन होगा। लेकिन अगर मेरा वो कोड जावास्क्रिप्ट या VB स्क्रिप्ट में बना हुआ है तो वो हमेशा कहां पे रन होगा, वो हमेशा क्लाइंट की मशीन पे ही रन होगा। क्लियर थी बात। सो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई यू हैव गिवन ऑल दीज 4 लैंग्वेजेस एंड दे टोल्ड यू दैट ओके डिस्टिंग्विश दीज लैंग्वेजेस इन client side scripting language or server side scripting language. So basically ASP JSP are the server side scripting language, whereas
JavaScript and VBScript are the client side scripting language. So you have to remember this thing. Okay. So now, what is a scripting language? A scripting language is basically a programming language which can be embedded or integrated with other languages. Some of the most widely used scripting languages are JavaScript, VBScript, PHP, Perl, Python, Ruby, ASP, JSP. So these all are the scripting languages. Okay, and they have been used extensively to create dynamic web pages. Okay, तो आगे देखते हैं next. The next is basically the difference between a web page and a website. Okay, so now what is the difference between a web page and a website? So we have 4 points with us. First one is the definition. When we talk about the definition, so जैसे मैंने आपको बताया कि भैया एक वेब पे हम डिजाइन करते हैं वेब पेज, जैसे मैंने एक वेब पेज बनाया, फिर दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, और इन सारे वेब पेजेस को मैं क्या करूंगा, आई बेसिकली लिंक ऑल दीज वेब पेजेस, सारे वेब पेजेस को आपस में लिंक कर दिया. तो जब इन सबको लिंक कर दिया तो इनका कंबाइंड जो फाइल बनी वो क्या कहलाएगी, हमारी वेबसाइट. ठीक है. सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट. अ वेब पेज इज बेसिकली अ सिंगल डॉक्यूमेंट. Okay, a web page is a single document on the internet, whereas a website is a collection of many related web pages linked together under one domain. Therefore, a web page is a part of a website. Okay, so जो web page, जैसे मैंने बताया कि web page कैसे बनेगा, its web page is basically a part of a website, क्योंकि बड़े सारे collection of web pages creates a website. Okay, now. और व्हाट इज दिस अंडर वन डोमेन? अंडर वन डोमेन मीन्स जैसे मैंने www.yahoo.com क्लिक करा, सो www.yahoo.com इज बेसिकली अ डोमेन. अब आप जिस भी पेज पे क्लिक करते जाएंगे ना, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, ऊपर yahoo.com ये आता रहेगा, क्योंकि ये सारे पेजेस yahoo.com के अंडर है ना. सो दैट इज कॉल्ड, दे आर ऑल लिंक टुगेदर अंडर वन डोमेन. नाउ उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज बेसिकली ऑफ यूसेज. अब देखो, अब जैसे सपोज मान लो याहू की वेबसाइट है, तो उसके अंदर हम लोगों ने, जैसे मान लो मैं खुद की कोई वेबसाइट बना रहा हूं, ठीक है, और सपोज मेरा होम पेज है जिसमें सारी चीजों के बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन दे रखी है. फिर मान लो मैंने एक स्पोर्ट्स का वेब पेज बनाया जो बेसिकली फोकस्ड ऑन द स्पोर्ट्स. ओके, फिर मैंने सपोज मान लो हेल्थ एंड फिटनेस का एक वेब पेज बनाया, सपोज करंट न्यूज का एक वेब पेज बनाया. सो ऐसा अलग अलग वेब पेज बनाए. तो जब हम वेब पेज बनाते हैं तो वी बेसिकली फोकस ऑन अ पर्टिकुलर कंटेंट. ठीक है. सो वेब पेज बेसिकली एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बनाया जाता है, और जब हम सारे वेब पेजेस को कंबाइन कर देंगे तो वेबसाइट बन गई ना. तो वेबसाइट बेसिकली क्या हो गई, वो डिफरेंट एंटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है. ओके, सो अ वेब पेज हैज कंटेंट अबाउट अ सिंगल एंटिटी. ऑन द अदर हैंड अ वेबसाइट हैज कंटेंट अबाउट सेवरल एंटिटीज. ठीक है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एड्रेस डिपेंडेंसी. अब देखो, एड्रेस डिपेंडेंसी का मतलब क्या है. जब हम सपोज वी वांट टू ओपन अ वेबसाइट, तो जैसे मैंने बोला कि www.yahoo.com लिखा, सो याहू का होम पेज अपीयर्स इन द स्क्रीन. ओके, सो उसके बाद मैं जिस भी ऑप्शन पे जो याहू की वेबसाइट के अंदर उन पे क्लिक करूंगा, सो ऑब्वियसली अ न्यू वेब पेज इज डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ मी. लेकिन वो सारे के सारे किसके अंडर होंगे, वो सारे के सारे yahoo.com के अंडर ही होंगे ना. ठीक है. अब देखो, द एड्रेस of the URL of a web page depends on the website. ठीक है. जैसे वेबसाइट का जो भी एड्रेस है, जैसे मान लो हमने लिख दिया www, ठीक है, .yahoo.com. ठीक है. तो www. देन उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया जी yahoo.com. सो अब जितने भी वेब पेज उसके अंदर ओपन होते रहेंगे, वो सारे के सारों का मेन एड्रेस क्या रहेगा, वो सबका एक ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड yahoo.com. ठीक है. अब मैं आपको इसको दिखा भी देता हूं, जरा इसको किस तरह से हम बात कर रहे हैं इसके बारे में. सो एक ये वेबसाइट ओपन करते हैं. अब हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो गई. ठीक है. अब मान लो मैंने यहां लिख दिया www.yahoo.com. ठीक है. सो ये आ गया मेरे सामने, याहू का पेज आ गया. तो ऊपर देखो लिखा हुआ ना yahoo.com. अब सपोज मान लो मैं यहां पे क्रिकेट पे क्लिक करूंगा, तो मेरे सामने एक क्रिकेट से भी रिलेटेड पेज आएगा, लेकिन वो ये देखो याहू के अंडर ही आ रहा सारा कुछ. ठीक है. और सपोज वापस बैक जाते हैं. अब सपोज यहां पे मैं
अब उसी तरह से अगर आप कुछ भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे सपोज मान लो मैंने यहाँ पे कुछ सर्च कर लेता हूं, जैसे मान लो लेटेस्ट पाइथन वर्जन्स, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन खुल गई। इसको खोलूंगा तो ऑब्वियसली इसकी वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो उस वेबसाइट पे जाने के बाद जितने भी पेजेस पे मैं जाऊंगा सारे, जैसा अब ये आ गया, अब देखो python.org वेबसाइट है। अगर मैं अबाउट में चला जाऊंगा तो भाई अबाउट से इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा, लेकिन रहेगा ऊपर python.org ही रहेगा सारा कुछ, ठीक है। ये देखो python.org रहा। मैं डॉक्यूमेंटेशन में चला जाऊंगा तो भी ऊपर python.org देखो python.org डॉक आ गया। मैं कम्युनिटी पे चला गया तो देखो python.org कम्युनिटी आ गया। सो जो भी है सारा कुछ इसी के अंडर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि जितने भी वेब पेजेस हैं उनका एड्रेस एक ही है, दैट इज python.org, ठीक है। तो कहने का मतलब जो वेब पेज है वो वेबसाइट के एड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी वेबसाइट का एड्रेस है, जैसे python.org है तो उसके अंदर जितने भी वेब पेजेस होंगे सारे के सारे उसी एड्रेस के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, ठीक है जी। सो द एड्रेस ऑफ द यूआरएल ऑफ अ वेब पेज डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट, यानी कि वेब पेज का जो एड्रेस होगा दैट डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट, बट द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, लेकिन वेबसाइट जो है वो वेब पेज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वेब पेज वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट टाइम की बात करेंगे तो देखो सिंपल सी बात है यार, एक सिंगल वेब पेज बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर सपोज मैं वेबसाइट बना रहा हूं जिसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस होंगे, सपोज मान लो मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं, इन दैट वेबसाइट देयर आर 50 पेजेस, 50 वेब पेजेस। सो ऑब्वियसली जब मेरे सारे 50 वेब पेजेस तैयार हो जाएंगे एंड दे ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर, ओनली देन माय वेबसाइट इज फाइनल, ओके। सो ऑब्वियसली 50 वेब पेजेस को बनाना, उनको लिंक करना, ऑब्वियसली इट टेक्स सम टाइम, बट इफ वी टॉक अबाउट अ सिंगल वेब पेज तो सिंगल वेब पेज जल्दी बन जाएगा। सो इट रिक्वायर्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू डेवलप अ वेब पेज। फॉर डेवलपिंग अ सिंगल वेब पेज सिंपल सा टाइम लगेगा, whereas on the other hand it takes a long time to develop a complete website. Obviously website is a collection of web pages that are interlinked together. So obviously अब सारे वेब पेजेस तैयार होंगे और उनके बीच में आपने लिंक स्टैब्लिश कर देंगे तभी वेबसाइट आपकी बनेगी ना। सो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा और एक सिंगल वेब पेज बनाने में देर इज नो टाइम, ठीक है, कुछ ज्यादा टाइम उसमें लगना नहीं है। सो दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द वेब पेज एंड द वेबसाइट। नाउ देर इज वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड एज द वेब सर्वर। सो फर्स्ट वी सी कि व्हाट इज बेसिकली ए सर्वर। तो देखो सर्वर बेसिकली क्या मतलब है, एक सर्वर इज बेसिकली ए मशीन जिसका काम क्या होता है, हुज वर्क इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूजर, ठीक है। सर्वर इज बेसिकली अ मशीन हुज वर्क इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूजर। अब जैसे सपोज मान लीजिए याहू कंपनी है तो याहू वालों का भी क्या होगा, एक सर्वर होगा। फेसबुक कंपनी है तो फेसबुक वालों का भी क्या होगा, एक सर्वर होगा। सो वी कॉल देम एज वेब सर्वर, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, वेब सर्वर। तो जब हम सपोज फेसबुक ओपन करते हैं या उसमें कुछ भी काम करते हैं तो ऑल द टाइम माई रिक्वेस्ट गोज टू द फेसबुक वेब सर्वर, वहां से वो मेरी रिक्वेस्ट फुलफिल होके देन आई विल सी द रिजल्ट। जैसे सपोज मान लो मैंने अपना लिखा www.facebook.com, सो माई रिक्वेस्ट गोज टू द वेब सर्वर एंड देन the home page of the Facebook appears in my computer screen. Over there I entered my username and password, and when I write my username and password and press sign in, then again my request goes to the Facebook web server. उस Facebook के वेब सर्वर ने मेरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया एंड देन अ पेज अपीयर्स इन माय स्क्रीन, जो कि मेरा प्रोफाइल होम पेज होगा जहां पे मेरे फ्रेंड्स के पोस्ट आएंगे और जो गेम्स में ओपन करता हूं उनकी लिस्ट होगी। तो मेरे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें दिखाई देगी, ओके। सो बेसिकली फेसबुक का वेब सर्वर का क्या कर रहा है कि वट एवर रिक्वेस्ट आई सेंड टू हिम कि भाई मुझे ये चीज देखनी है, ही प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट एंड गिव मी द सर्विस ऑफ दैट थिंग, ठीक है। सो सर्वर इज बेसिकली अ मशीन offering services to the other machines. So web server is a machine, okay, and whatever result he is sending, that is displayed in my machine. So that's why it is written that a server is basically a machine offering services to another machine, and it is a kind of data center from where all the information is taken, okay. सो जो फेसबुक का वेब सर्वर है उसमें क्या है, सारे लोग जिन्होंने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया उन सबकी इंफॉर्मेशन उस फेसबुक के वेब सर्वर में पड़ी हुई है। सो इट इज लाइक अ डेटा सेंटर फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। सो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म अ वेब सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट डिलीवर वेब पेजेस। एवरी वेब सर्वर हैज एन आईपी एड्रेस एंड पॉसिबली अ डोमेन नेम। ऑब्वियसली
मुझे फेसबुक ओपन करना हो तो मैं फेसबुक का डोमेन नेम लिखूंगा ना. व्हाट इज द डोमेन नेम ऑफ द फेसबुक? दैट इज www.facebook.com. दैट इज द डोमेन नेम. ओके, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एवरी सिस्टम विच इज कनेक्टेड इन द इंटरनेट हैज सम आईपी एड्रेस. सो ऑब्वियसली जो फेसबुक का वेब सर्वर होगा उसका डोमेन नेम हो गया www.yahoo.com और उसका आईपी एड्रेस भी होगा कुछ ना कुछ. ठीक है, सो वही चीज बता रहे हैं कि वेब सर्वर इज बेसिकली एक मशीन है जो बेसिकली डिलीवर करता है वेब पेजेस टू द, जो रिक्वेस्ट करेगा वेब पेजेस की उसको वो वाला वेब पेज प्रोवाइड कर देगा. नाउ नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली अ वेब होस्टिंग. तो वेब होस्टिंग सर्विस इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस that allow individual firms and organization to provide their own website accessible via world wide web. अब सपोज मान लीजिए आप लोगों ने HTML सीख लिया, मान लो आपने कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी सीख ली, आपने अपनी पूरी वेबसाइट डिजाइन कर दी. ना वेबसाइट डिजाइन हो गई, अब आप चाहते हो कि भैया मेरी इस वेबसाइट को इंटरनेट में डाल दिया जाए ताकि कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर सके. तो उसके लिए आपको ऐसी कंपनीज को कांटेक्ट करना पड़ेगा जो वेब होस्टिंग करती हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे एक वेबसाइट है, एक कंपनी जिसका नाम है GoDaddy. ठीक है, आप लोग ऐड भी देखते होंगे इसके. सो आपको ने एक वेबसाइट बना के, अब सपोज अपनी वेबसाइट को अगर होस्ट करवाना चाहते हो तो आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा. दे विल फिक्स अ पर्टिकुलर एनुअल अमाउंट फॉर यू और फिर वो आपकी वेबसाइट उठा के अपने वेब सर्वर में डाल देंगे. और फिर जब एक बार उन्होंने आपकी वेबसाइट अपने वेब सर्वर पर डाल दी, कोई डोमेन नेम आपके लिए रिजर्व कर दिया और आपकी वेबसाइट जो है अपने वेब सर्वर पे डाल दी, तो उसके बाद फिर वो सब लोग देख सकते हैं उसको. अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे सपोज मान लीजिए एक प्रोफेसर है जिनका नाम है मिस्टर जगजीत सिंह. अब जगजीत सिंह जो प्रोफेसर है वो नेटवर्क सिक्योरिटीज और नेटवर्क सिस्टम्स के ऊपर उन्होंने बड़े सारे अपने लेक्चर्स बनाए हैं, बड़े सारे उन्होंने ई बुक्स क्रिएट करी हैं. अब मिस्टर जगजीत सिंह ने क्या करा, अपनी एक वेबसाइट बना ली. ठीक है, लेकिन अभी जब उन्होंने वेबसाइट पूरी डिजाइन करी, अभी अपने लैपटॉप पे डिजाइन करी ना, उनकी वेबसाइट रेडी है, बिल्कुल चल रही है, लेकिन वो अभी सिर्फ उनके लैपटॉप पे रन हो रही है. नाउ अब मिस्टर जगजीत सिंह चाहते हैं कि उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे उस वेबसाइट का फायदा उठा सके. इनफैक्ट सिर्फ उनके स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि और भी लोग हैं वो भी सब उनकी वेबसाइट्स को यूज करके नॉलेज गेन कर सकें. तो अब मिस्टर जगजीत सिंह ने अपने एक और फ्रेंड को कॉन्टेक्ट किया, मिस्टर गौरव. अब जो गौरव हैं वो सपोज मान लीजिए GoDaddy कंपनी में काम करते हैं. तो मिस्टर गौरव ने कहा कि डोंट वरी, मेरी कंपनी जो है वेबसाइट होस्टिंग करती है तो मैं तेरी वेबसाइट इंटरनेट पे डलवा दूंगा. तो अब होगा क्या कि अब मिस्टर जगजीत सिंह कुछ एनुअल अमाउंट उस कंपनी को पे करेंगे और फिर मिस्टर गौरव उनकी उस वेबसाइट को जो उनके सिस्टम पड़ी है उसको कॉपी करके अपनी कंपनी के वेब सर्वर में डाल देंगे. सो जब वो वेब सर्वर पे डाल देंगे और उनके लिए एक डोमेन नेम भी ले लेंगे, जैसे मान लो www.jsclasses.com. तो अब उनका डोमेन नेम हो गया www.jsclasses.com और बस उनकी वेबसाइट उनके वेब सर्वर पे जा गई. अब कोई भी बंदा इंटरनेट पे जाके अपना वेब ब्राउजर खोल के अगर लिखेगा ऊपर www.jsclasses.com और एंटर मारेगा तो जगजीत सर की जो वेबसाइट है वो आपके कंप्यूटर पे ओपन हो जाएगी. ठीक है जी, तो ये जो वेबसाइट को इंटरनेट पे लोगों को प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एज अ वेब होस्टिंग, यानी कि वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं वो लोग. राइट, द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली कुकीज. सो व्हाट इज बेसिकली दीज कुकीज? अब कुकीज क्या होता है, देखो जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो कुकीज एक तरह की एक शॉर्ट फाइल होती है, एक स्मॉल फाइल होती है जो हमारे कंप्यूटर में आ जाती है. तो जब आप कोई वेबसाइट ओपन करोगे तो उस वेबसाइट के साथ एक कुकी फाइल भी अटैच है और वो कुकी फाइल आपके कंप्यूटर में आ जाती है. अब ये कुकी फाइल आपके कंप्यूटर में आके करती क्या है, जो भी आप उस वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन सब का वो एक्टिविटी को ट्रैक करता है. ठीक है, सो दैट जब आपको दोबारा से उसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना हो तो इजिली और क्विकली वे में परफॉर्म हो जाए. तो देखिए, व्हेन द यूजर ब्राउज अ वेबसाइट, द वेब सर्वर सेंड्स अ टेक्स्ट फाइल टू द वेब ब्राउजर. यानी कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो भी वेब सर्वर है, जो वेब सर्वर हमें वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारी उस वेबसाइट के साथ साथ एक स्मॉल फाइल भी भेज देता है जिसको हम लोग कहते हैं कुकी फाइल. सो दिस स्मॉल टेक्स्ट फाइल इज अ कुकी. जनरली अ कुकी कंटेन नेम ऑफ द वेबसाइट फ्रॉम विच इट हैज कम फ्रॉम एंड अ यूनिक आईडी टैग. तो सबसे पहले कुकी के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है कि पहले ये कुकी जो है किस वेबसाइट की फाइल है. ठीक है, सम कुकीज लास्ट ओनली अंटिल द ब्राउजर इज क्लोज. दे आर नॉट स्टोर्ड ऑन योर हार्ड डिस्क ड्राइव. They are usually used to track the pages that you visit so that the information can be customized for you for that visit. अब जैसे मान लो मैं कोई वेबसाइट खोली, ओपन करी, अब
जैसे मैंने उस वेबसाइट को अपने सिस्टम पे ओपन किया, जैसे सपोज मान लो वही अभी हम बात करते हैं कि मैंने जेएस क्लासेस वाली वेबसाइट ओपन करी, मैंने लिखा www.jsclasses.com, तो अब जेएस क्लासेस का होम पेज मेरे कंप्यूटर पे लोड हुआ, तो साथ साथ उसके एक कुकी फाइल भी मेरे कंप्यूटर में लोड हो गई। अब सपोज मान लो क्या होता है कि मैं जो है जेएस क्लासेस में जाके नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स है मैं ज्यादा उन्हीं को देख रहा हूं और कोई लेक्चर देख ही नहीं रहा, तो एक तरह से वो कुकी ये इन्फॉर्मेशन ट्रैक रख रही है ना कि हाँ भाई ये यूजर जो है ये नेटवर्क सिक्योरिटीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो कल को सपोज अगर मान लो जिससे कि अब जगजीत सर को लोगों के इंटरेस्ट के बारे में पता लग रहा है, तो कल को उन्होंने कोई नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कोर्स लॉन्च करना हो तो उन्हें पता है कि यार ज्यादातर लोग इस चीज पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो मुझे उससे रिलेटेड कोई कोर्स अपने वेबसाइट पे लॉन्च करना चाहिए। तो सारी इंफॉर्मेशन एक तरह से गैदर हो सकती है, ठीक है। तो कुकी फाइल बेसिकली क्या करती है कि जो भी वेबसाइट आपने ओपन करी है जिसकी कुकी फाइल है, वो कुकी फाइल क्या स्टोर करेगी कि उस वेबसाइट पे आपने जो जो काम किया है, जो जो वर्क किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास ट्रैक रखेगा उसका। सो दैट इज बेसिकली अ कुकी फाइल, ठीक है जी। एंड द लास्ट वन इज बेसिकली अ वेब ब्राउजर। क्या होता है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर्स हैं। तो वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि देखो अगर सपोज आपके पास एक लैपटॉप है और मैं आपसे बोलूं कि भाई चलो जरा इसमें एक वेबसाइट खोलो www.python.org, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई ना कोई वेब ब्राउजर को पहले उसे ओपन करेंगे ना। एक पर्सन मान लो कि सपोज ये दोनों आपके सिस्टम है ही नहीं, आपको कहीं कोई वेब ब्राउजर दिख नहीं रहा, आपको ना तो कहीं आपको गूगल क्रोम दिखाई दे रहा है, ना आपको कहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखाई दे रहा है। ओके, अब क्या करोगे, इफ you haven't seen these applications in your computer, then how can you open the website? You will never open the website. क्यों? क्योंकि because for opening those website we need a specific program that is called as the web browser, because without the web browser we cannot open a website in our computer. So without the Internet Explorer or without the Google Chrome, if no web browser is present in your computer, then you can't open any website. Okay, so a web browser is a software A web browser, sorry, just wait. A web browser is a software application for accessing information on the World Wide Web. And when a user requests a particular website, the web browser retrieves the necessary content from the web server and then display the resulting web page on the user device. So obviously, जब आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, so you will write www.yahoo.com and your request will be sent to the Yahoo web browser. Yahoo web server. So Yahoo web server process your result and send the required information. That information is received by your web browser, and then web browser displays those content to the user. Okay, so that is written over here. And there are various web browsers like Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera. So these are some examples of the web browser. So first one is the Google Chrome. Google Chrome is a pretty recent when compared to other web browser out there. Today, Google Chrome has become the most used web browser in the world. Google Chrome has released in 2008 as a freeware, and that is written in C++. So there is a programming language like C++. So the Google Chrome is basically written in this C++ language. Okay. Now the second one is the Firefox. Firefox is the second most popular web browser in the world. And Firefox is basically a product of the Mozilla organization, and they released the Firefox in year 2002 by the name of Phoenix, and now its name is Mozilla Firefox. And the third one is Safari. Safari web browser is a freeware web browser from the tech giant Apple Inc. Safari is the default web browser in the Mac computer and in iOS X and iOS operating system. So if you purchase a laptop of Apple, okay, अगर आप Apple कंपनी का लैपटॉप अगर आप परचेज करते हैं, so in that laptop you will not see Internet Explorer like this. उसमें जो default web browser है, that is basically a Safari. Okay, and the next one is the Internet Explorer. So Internet Explorer जो web browser है किसका, that is Windows operating system का. So अगर आप अपने कंप्यूटर में Windows operating system डालेंगे तो एक default web browser आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, that is called as the Internet Explorer. Okay, so as Windows operating system is the most popular desktop operating system in the world, so Internet Explorer simply is the default web browser in Windows, making this browser the fourth most popular and used browser in the world. Okay, and there is one more, that is Opera web browser.
ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर आउट देयर विच वॉज डेवलप्ड बाय ओपेरा सॉफ्टवेयर इन 1995, और जो ओपेरा वेब ब्राउजर है दैट इज ऑल्सो रिटन इन C++. ठीक है, ओपेरा वेब ब्राउजर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर विंडोज, यूनिक्स एंड OS X. तो ये जो ओपेरा वेब ब्राउजर है, अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसमें भी इसको डाउनलोड करके चला सकते हैं. जैसे कि सपोज हम गूगल क्रोम भी डाउनलोड करके चला लेते हैं ना, तो सिमिलरली ओपेरा भी आप चला सकते हैं. तो ये हमने डिटेल दी है कुछ वेब ब्राउजर्स की, एंड वेब ब्राउजर होता क्या है, एंड द वेरियस वेब ब्राउजर जो आजकल चल रहे हैं उनकी लिस्ट है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप कि आपको सब चीजें समझ में आई होगी, यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.